الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، آفتاب خطابت، فیضان بحر العلوم، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، امام المسلمین اور پیشوائے مرتضی صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے۔ سامعین اکرام، حاضرین مجلس، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ 7واں جلسہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کے دولت قدے میں صدیقی منزل ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم حاضر ہیں۔ حضور افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، عاشق رسول اللہ، یار غار یار مزار، جانشین مصطفیٰ، سجدہ نشین مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جب کبھی ذکر کرو تو ان کے ذکر کو مقدم رکھو۔ تو سرکار کی بھی خود خواہش کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر مقدم رہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے حسان، تم نے میری نعتیں تو بہت بیان کی ہیں، قصیدے بہت لکھے ہیں، کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی شان حضرت حسان بن ثابت نے وہیں کھڑے کے سرکار کے سامنے پیش کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس میں غار کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، تو سرکار مسکرا دیے۔ تو اب سرکار کی عین خواہش معلوم ہوئی کہ جہاں سرکار کی نعت پڑھے جائے وہیں منقبت صدیق اکبر بھی پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ، چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا عرس ہے، تو ہم ہر سال یہ عرس مناتے ہیں، اور ہم یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے خود ان کو مقدم کیا ہے، فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، تو پھر ہر امتی کو چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو تمام خلق میں انبیاء کے بعد ترجیح دے۔
अफजल माने उनको। हम ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए ये जलसा कर रहे हैं। और कुरान की जो आयत पढ़ी जाती है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यहाँ पर मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहू यहाँ वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ तिलावत ऐसा करते थे कि वल्लज़ी जा बिल हक़, जो हक के साथ आए और जो उन हक की तस्दीक की, और दोनों भी मुत्तकी हैं। तो सरकार अली ने फरमाया यहाँ सिद्क़ से मुराद हक है, और ये हक लेकर रसूल पाक आए और इस हक की तस्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की, इसलिए वो दोनों मुत्तकी हैं। और रसूल के बाद अगर कोई मर्तबे में आला है तो वो ज़ात अबू बकर सिद्दीक की। हजरत मौलाना ने खुद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को आसमानों से लक़ब मिला है सिद्दीक, यानी अल्लाह दिया है। जब सरकार दो आलम मेराज में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापिस आ रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछे, मैं तो एक सेकंड में गया आ गया, मगर ये जमीन पे मेरी तस्दीक कौन करेगा? तो जिब्रील ने कहा वो अबू बकर सिद्दीक करेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे इंतजामात फरमाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को कैसा बुलंद मर्तबा दिया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो शान जिब्रील को भी मालूम थी कि अल्लाह ने उनको क्या शान अता फरमाई है। इसलिए सरकार से फरमाने के आका यह जमीन में जब आप जाकर इसका ऐलान करेंगे तो तस्दीक करने वाली ज़ात अबू बकर सिद्दीक। और कमाल यह है कि काफिरों ने इनसे उनसे नहीं पूछा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के ऐलान नबूवत से भी दोस्त है। 18 साल की उम्र से सरकार के साथ है, बचपने से। अभी हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा पैदा नहीं हुए थे जब से दोस्ती है हजरत अबू बकर की हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतने खराइन मौजूद है, इतने आसार मौजूद है, उसके बाद कैसा बोलते हुए? इस वजह से हमारे को ये अफजलियत का जलसा करना पड़ता, क्योंकि जो झूठ बांधे जा रहे हैं मौला अली पर, हम मौला अली के चाहने वाले हैं। हमसे बढ़कर अली का चाहने वाला कौन है? हम तो मौलाए कायनात कहते हैं, मौलाना कहते हैं, सैयदना कहते हैं, हम कहते हैं हमारी जान है अली, हमारा ईमान है अली, और मोमिन की निशानी है अली। तो हजरत अली को तो हम इस तरह मानते हैं। अब आप हजरत अली का नाम लेकर अगर हजरत अली के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम गुलाम भी उसका जवाब देंगे। अब देखो जिब्रील कह रहे हैं, और जब सरकार दो आलम मेराज से वापिस आए तो काफिरों ने जाके इनसे उनसे नहीं पूछा, क्योंकि उनको मालूम था कि अबू बकर बहुत करीब है। हजरत अबू बकर को सब चीजें मालूम है। अबू बकर सिद्दीक पहले ही मान रहे हैं, हर बात में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार की हिफाजत में, सरकार के पैगाम को फैलाने में अव्वल है। तो इसलिए काफिरों ने अबू जहल जाके इनसे उनसे नहीं पूछा, डायरेक्ट हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आया, आके पूछने लगा कि आपके साहब तो ये बात कह रहे हैं कि आसमानों पे जाकर आया एक सेकंड में, तो ये बात क्या अकल के मुताबिक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ नहीं पूछे, इतना पूछे कौन बोल रहे हैं? कहा कि आपके नबी बोल रहे हैं, आपके नबी कर रहे हैं, आपके साहिब कह रहे हैं। वो लोग जो है काफिरा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार का साहिब कहते थे, कुरान ने भी साहब कहा। इसलिए तो उलमा ने कहा कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबी नहीं माने वो कुरान की रोशनी में काफिर है। बेशक कुरान का इनकार है। अब यह सहाबी तो बड़ी बात है, ईमान क्या बोल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बहुत बड़ी
चैलेंज की बात है हमारे लिए, इसलिए हम ये चीजें आपके सामने पेश करते हैं। तो आगे बोला, आपके साए बोल रहे, बोले अगर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो बिल्कुल सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, आप जाके सरकार से नहीं पूछे, सरकार से नहीं पूछे, क्योंकि उनको मालूम है सरकार का मकाम और मर्तबा क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें 100 जब हजरत आप जब बहीर राहिब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक ख्वाब आया, ख्वाब में आपने देखा कि आपके गोद में चांद उतर गया है, तो बड़े हैरतज़दा हुए। तो जमाने में आप बाहर थे, शाम के इलाके में थे और राहिब रहते थे। उसके पास गया, राहिब के पास, तो राहिब ने ये सब कुछ नहीं पूछा, ये पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वाह सुभान अल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? बोले मक्के में, मक्के के रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ देखो मक्के में नबी आने वाले हैं, ये तो राहिबों को भी मालूम था। और वो नबी के आप साहिब होंगे और नबी के बाद आप खलीफा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या बात। अभी हजरत अबू बकर से हजरत अली पैदा नहीं हुए, राहिब और आप खलीफा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान। क्या बात है, इतने दलाल मौजूद होने के बाद जी, हमारे साथ क्यों ये एहसासियत का मसला पैदा करके मौला अली को बीच में लाके, हाँ, मगर आप कितना भी बीच में लाओ, हम मौला की बात करेंगे। बेशक। मौला अली ने जो फरमाया है उस पर हम कायम है, दायम है, हम मौला अली के चाहने वाले हैं। बेशक। तो जब सरकार, और उस राहिब ने 70 अशार सरकार दो आलम की शान में लिखा और कहा कि जब मुलाकात हो तो मेरी तरफ से माजरत करना कि मैं इस उम्र में आ नहीं सकता। उसकी उम्र बताई गई 300 साल ज्यादा क्या तारीख में, तो इस उम्र में मैं आ नहीं सकता, मेरी तरफ से ये अशार उनको पेश कर देना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब पूछा, या अल्लाह आप तो आखिरी नबी बन के आए हैं, आखिर निशानी क्या है? तो बोले वो गोहिल राय जो दिया अशार होता है, सरकार ने बता दिया। तो ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बचपने से सरकार के साथ है। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज दाने नबूवत है, सरकार के मिजाज से वाकिफ है। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर तमाम सहाबा में तशवीश हो गई, हजरत उमर तो सरकार दो आलम शासन के सामने आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये कैसा मुआहदा है? उनका आदमी आए तो हम छोड़ देना, हमारा आदमी पकड़े जाना, ये क्या मुआहदा है सरकार? तो बोले, सरकार ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह रसूल यही चाहते हैं, क्या अल्लाह रसूल का मंशा यही है और मुझे मालूम है क्या। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, जाके बोले तो सरकार ने जो अल्फाज कहे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी वही अल्फाज कहा। तमाम सहाबा में एक किस्म का डाउट पैदा हो गया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मुतमईन थे। इस तरह मिजाज दाने नबूवत है। सरकार को मालूम था किसको बिस्तर देना, किसको सफर में ले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अपने मिजाज दां, अपने से जो तबीयत मिलती उसको सफर में रखते। बेशक, बेशक, तो इतनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत रसूल पाक से मेल खाती है। बेशक। सफर में उनको ले ले जाते, जिससे मोहब्बत होती है, जो उनको चाहता है और जो हर चीज का ख्याल रखते हैं उनको ले जाते हैं। और ये बदअकीदा बोल रहे हैं, हिजरत में साथ में थे बोले। अस्तगफुरुल्लाह मौजूद। तो हिजरत में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में जब गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेके गए। अब हम इसमें कोई मुकाबला नहीं करते, उनको बिस्तर बिठा लो, सरकार की मर्जी, जिसको जहाँ चाहे अता करना है। जी जी, हम लोग अहले सुन्नत जमात नहीं करते ये बात। तुम झगड़े कर रहे, उनको बिस्तर पे सुला, उनको जानशीन है, तो भी सफर करने वाले क्या है? सफर में मुश्किल थी, बिस्तर पे सुलाने में क्या मुश्किल थी? हाँ, मुश्किल किसमें थी? मसाइब किसमें थे? छुप के जाना था,
तमाम लोगों को मालूम नहीं होना था। फिर 13 मील तक सरकार दो आलम को अपने कांधे पे सवार करके हजरत अबू बकर सिद्दीक लेके गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर देखिए आप, ये क्या बातें हैं। 3 रात गुजारे कार में, और जब वो लेके गए आप सरकार दो आलम को कांधे पे, तो भाई कुरान में आया कि हजरत हाजिरा जो सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ी, तो उसको अल्लाह शायरुल्लाह कहा। हाँ 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 हाँ, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, और ये ऊँटनी हजरत सालेह अलैहि को कहा है अल्लाह ने मेरी ऊँटनी। वाह वाह वाह। फिर नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी होगी उन्हें, और उसकी कोंचे काटने वालों की वजह से अजाब आ गया वहां पे। हाँ खाली ऊंट की कोंची काटे तो अजाब आ गया। यहाँ तो सरकार अबू बकर सिद्दीक साथ ही नहीं है, कांधे पे बिठा लिए हैं, वाह, और 12 खातिम नबीयीन के आए अब्दत हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने को लग रही। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जी पूरी नबूवत का बार उठा लिए। खाली नबी की वालदा, नबी की बीवी दौड़े, उनके पाँव अरदस लगे उस जमीन पर, तो वो जमीन अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया शायरुल्लाह, या आखिरी नबी महबूब खुदा वाह। हबीब अल्लाह पूरे जिस्म के साथ सरकार अबू बकर सिद्दीक पर सवार है, और आपके पैर उसके सीने पे लग रहे हैं। 12 आपके सीने ने सरकार दो आलम के कदम अक़दस को चूमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या नुक्ता है। तो फिर बताओ ये शायरुल्लाह हुए कि नहीं हुए? बेशक बेशक। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो शान, वो मर्तबत है। इसलिए हुजूर बहरम सरकार ने फरमाया जानिशीन मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानिशी सिद्दीक अकबर है। इसलिए फरमाया, तो सरकार बहरूमी ने फरमाया। अभी आप ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार के अशार सुने, जी बेशक उनके मुर्शिद के। अब कोई बोला ऐसा, वो लोगों को हम नहीं देखते किसी को भी, हम ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार को देखेंगे। बेशक ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार से रास्त इल्म और रूहानियत हासिल की बहनू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने। बेशक हाँ, तो हम बहरून सरकार को देखेंगे, ख्वाजा महमूदुल्लाह सरकार को देखेंगे। बेशक हमारे को इनको उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारे को नको आपको बताओ ऐसा है वैसा है। मैं इसलिए बोलता हूँ अपने तकरीरों में, मैं इनके खानदान का उनने कहा, वो खानदान को बताओ, आप अकीदा बताओ। वाह खानदान के हो गया, हम इनकार नहीं करने किसी के खानदान का, हमारे इनका शिजरे मौजूद है, खानदान का इनकार करने किसी के होंगे। आप बहुत बड़े बड़े खानदान के होंगे, लेकिन अकीदा बताओ आप कि आपका ये अकीदा क्यों बना, किस लिए बना। हाँ? इसलिए आप जो है हजरत नफ्स ज़किया से ज्यादा हजरत अली को पहचानते। हजरत नफ्स ज़किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन के पोते हैं। उन्होंने फरमा रहे हैं कि हजरत नफ्स ज़किया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मेरे दादा हजरत अली से भी अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानता हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अहले बैत का एक सिलसिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जिस तरह मैं अपने दादा हजरत अली की शिफात का उम्मीदवार हूँ, उसी तरह मेरे नाना अबू बकर सिद्दीक की शिफात का उम्मीदवार हूँ। सुभान अल्लाह। तमाम अहले बैत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, हजरत अब्दुल्लाह महल, हजरत नफ्स ज़किया, ये तमाम अहले बैत अथार हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते थे। किताबों में मौजूद है, पढ़ लीजिए आप, समझे। सिर्फ सरकार बहरूम नहीं, जानिशी नहीं कहे। हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु मखाल इस्लाम में लिखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के सज्जादा नशीन है। क्या बात। पढ़ेंगे तो मालूम होगा ना, पढ़े ना करे कुछ भी। और चिश्तिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग हजरत नियाज बरेलवी, अब उनके अशार नहीं पढ़े जा रहे हैं, बेहतरीन खवाल पढ़ा करते थे पहले के। नियाज बरेलवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं चिश्तिया सिलसिले में, और उनका सिलसिला हजरत निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रज़ियल्लाहु ताला से है, जो हजरत ख्वाजा कलीमुल्लाह जहांबादी रज़ियल्लाहु ताला मुरीद है, हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पीर भाई है।
उस सिलसिले से है उन्होंने नियाज बरेलवी चिश्तिया सिलसिला इतना जबरदस्त वजनदार सिलसिला है ये। हाँ, तो हजरत नियाज बरेलवी तो फरमाते हैं, उनके फारसी शेर है, मुझे याद नहीं है, उसमें फरमाते हैं कि जानशीन अगर है तो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, तो ये है। और सीरे औलिया अगर आप पढ़ेंगे तो सीरे औलिया सैयद मोहम्मद किरवानी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा और मुरीद सैयद मोहम्मद किरवानी ने सीरे औलिया तहरीर फरमाया। हजरत निजामुद्दीन के हालात है उसमें खुद लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम मखलूक में अफजल है। और यहाँ तक उन्होंने लिख दिया, ये शिया क्या जाने हजरत अबू बकर सिद्दीक की रूहानियत को। क्या बात, सुभान अल्लाह। पढ़ लो, उसके बाद आके मेरे से बात करो। अब झगड़ा इस बात पर है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मैं इसलिए बोलता हूं कि आजकल बड़े पढ़े लिखे पहले बहुत अच्छी बातें बयान करते, हदीसें बयान करते, वो करते, ये करते, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर आप, प्रोफेसर आप, वो क्या की बन गए, वो है बड़े जमाली अपने मजमे को। उसके बाद बोले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत दुनियाई खिलाफत थी, रूहानियत नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह। मैं रिकॉर्ड है, मैं बता देता हूँ, मैं किसी पे इल्जाम लगाने लगा रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कुलीन मरकजी मजलिस जितने अहले सुन्नत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की रूहानियत बहुत बड़ी आला है। बेशक वो रूहानी भी खलीफा है रसूल पाक के, और दुनियाई भी खलीफा है, जाहिर में भी खलीफा है, बातिन में भी खलीफा है। समझे आप? अब तकसीम कर दिए, खिलाफत कुबरा, खिलाफत सुगरा, बहुत किताबें पढ़ो, मेरे को मालूम है, मेरे को रखो समझाओ, फिर मैं किताबों का ढेर लगाऊंगा तो फिर चले जाएंगे। खिलाफत कुबरा, खिलाफत कुबरा हजरत अली को है, खिलाफत सुगरा इनको हजरत अबू बकर उमर को है। अरे खिलाफत कुबरा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर और उस्मान गनी को है, और खिलाफत सुगरा भी उनको है। बेशक समझे? ये बातों में मत जाओ। बंदा नवाज सरकार खुद अफजल मानते हैं, बेशक तुम जो बंदा नवाज सरकार को लेके वो करते हैं। ये हुजूर बंदा नवाज की किताबें पढ़ लीजिए, हजरत ने खुद फरमाया कि मैं अहले सुन्नत जमात का सुन्नी हूँ, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानता हूँ, उसके बाद हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, उसके बाद अली को मानता हूँ। तो ये सारी रूहानियत के इमामों की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह कल बयान करने की कोशिश करूंगा। मगर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये आजकल जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, आजकल सारी दुनिया में यही बहस है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को रूहानियत की खिलाफत नहीं है, जबकि बहरुल सरकार ने क्या लिखा अभी सुने ना, तरीक़े खादरी और नक्शबंदी और शुतारी मदारी का भी आला रहनुमा और रहबर है। ये हजरत बहरुल सरकार ने फरमाया। इतने रूहानी सिलसिले सैयदना अबू बकर सिद्दीक से वजूद में आए, और आप ये बोल रहे हैं तो फिर हमको जवाब देना पड़ता। फिर बोल रहे हैं अली वाले अली वाले अली वाले हैं, तो भी कहे कि अली वाले हैं यार, हजरत अली तो उनको अफजल मान रहे। अरे आप बोले तो फिर आप चिड़ रहे हैं, अली वाले हैं तो अली की बात सुनो। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, इसलिए हम अली वाले हैं। अब देखो अभी जो है इन्होंने मेरे को बता रहे थे, कल ही मुजीब साहब जब अजमेर शरीफ गए तो इन्होंने जो वहाँ हजरत बहरुल सरकार की मनखबत सुना है, तो उन्हें कैसे कैसे बातें करा हजरत सिद्दीक अकबर की शान। इनके सामने बोला करते उन हजरत फातिमा को सताए, उन वैसा करे वैसा करे, कहीं को पढ़ ले बोल के रोका इनको बहस करे वहां पे। तो अजमेर शरीफ में बैठ के ख्वाजा के खिलाफ अकीदा कर रहे, तो हमने बोला उनको बुला के कह के खातिमा, कह के सैयदा जी, कह के जो है ना कुछ भी नहीं है, इस वास्ते बाबारी इनके पास कुछ भी करम नहीं है। ख्वाजा का करम उसके होगा जो अबू बकर सिद्दीक को मानेगा, तो ख्वाजा को भी विलायत मिली है, तो अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानने से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। फिर तुम किधर बातें कर रहे? हमारे को सिखा रहे हम अली वाले मौलाई है, मला काटी मले ये कि छोड़ो, तुम कुछ भी नहीं हमारे को, हम नहीं मानते तुम्हारे को। आज ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में है, ये खाली है हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कर रहे अच्छे पढ़े लिखे लोग, माहिरीन फन के, ऐसे ऐसे लोगों से मैं सुना हूं। इसलिए मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को मानता हूं, क्योंकि सरकार जितने हजरत अबू बकर सिद्दीक से खुश थे किसी से नहीं थे। सुभान अल्लाह।
ज्यादा खुशी। ये तमाम सहाबा जानते थे। जब सरकार बोलते थे मैं अबू बकर उमर जा रहे थे, मैं अबू बकर चल रहे थे, मैं अबू बकर यहाँ बैठे थे, मैं अबू बकर वहां जा रहे थे, सरकार ये बयान फरमाते हैं। देखो पढ़ो हदीस पाक आपको। सरकार दो आलम साहब ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब से है? सरकार ने बता पूछा अबू बकर याद है? वो बोले जी हो सरकार याद है। क्या याद है? बोले जब सारे रूहों को, सारी मखलूक की रूहों को अल्लाह ने जमा करके कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले सरकार की रूह ने कहा भला। ये अबू बकर सिद्दीक को याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब से साथ है अबू बकर सिद्दीक, तुमको क्या मालूम? ये रूहानियत है अबू बकर सिद्दीक की। इसलिए तो शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ ले जाके पूरी रूहानी दर्जा खत्म कर दिए, सुभान अल्लाह हज़रत, वहां तक पहुंचा दिया। और आप ये भी मालूम है ना कि मेराज शरीफ में जब आवाज आई अल्लाह की कुर्बत की, तो अबू बकर सिद्दीक की आवाज में आवाज आई। सुभान अल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कोई अपनी आवाज नहीं है। हाँ हाँ, सुभान क्योंकि अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज से उनसियत है सरकार को। तो आवाज भी आई अल्लाह की, तो अबू बकर सिद्दीक की आवाज में आई। सुभान अल्लाह। ये है शान हजरत अबू बकर सिद्दीक की। भाई चुप हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारे को जब अबू बकर सिद्दीक की शान में कोई गुस्सा भी करता है ना, हमको अंदर से गुस्सा आता है। बेशक आना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, इसलिए हम बोलते कोई भी होंगे तुरुम खान, हम तुम्हारे तुरुम खान को नहीं देखते, हम अबू बकर सिद्दीक की जात को देखते हैं। सरकार ने जिनको फरमाया कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक होंगे, यह हकी हदीसें भी है पूरी। आप ऐसा ना समझना कि नहीं बोले सरकार बोल के। इसलिए तो बैरून सरकार ने क्या लिखा, ज़कात माल बाद मुस्तफा सिद्दीक को देना। इशारा है खिलाफत का, जाहिर बल्कि अजहर है। इशारा भी है, जाहिर भी कर दिया गया, अजहर है। अब इसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता, इतना जाहिर है, इतना रोशन है। ये है, इसलिए बाबू हम हर एक को नहीं देखते, हम सिद्दीक अकबर की जात को देखते हैं, और वो भी हमको बैरून सरकार ने बताया है। इसलिए हम कायम हैं, इसलिए अफजलियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हैं। इंशाअल्लाह कल मरकजी जलसा जामे मस्जिद अफजलगंज में मुनक्किद है, आप लोगों को तो मालूम ही है। आप लोग भाई बड़ा है, मेहरबानी 10 बजे आ जाइए, प्रोग्राम शुरू करेंगे, सबको बोलने का मौका मिलता है। नहीं तो क्या होगा, आएंगे 12 बजे आएंगे तो उन्होंने 5 मिनट, उन्होंने 5 मिनट देखे तक उन्होंने बोलते हैं मैं भी मनकबत पढ़ता हूँ, उन्हें बोलते हैं मैं भी नाम पढ़ता हूँ, फिर लोगों के चेहरे उतर जाते। इसलिए मैं बोला 10 बजे रखो, पूरे लोगों इत्मीनान से पढ़ो, हर एक की तकरीर सुनो। हाँ, अब देखो हमारे बाकर साहब कितनी प्यारी तकरीर करे, पूरी अफजलियत पे कुरान और हदीस की रोशनी में बताया नहीं बताया। तो ये चीजें हमारे को मालूम होना जरूरी है ना। हम कहीं को रखे जलसा, हम बता रहे हैं आपको, देखो ये कुरान में है, ये हदीस में है, ऐसी कितनी रिवायतें पढ़ के सुनाए अफजल पे। हाँ, अब इसके बाद भी नहीं माने तो हमको गुस्सा नहीं आता, इतना खोल के बता रहे, कोई फंटी की बात तो नहीं करना, इधर की उधर की बात ज्यादा लोग तकरीर करके चले जाते। सामने रख के आपको बताया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर गुस्से में आके हम बोल देते। अब बोलना ही है तुम्हारे को, तुम कुरान और हदीस को अल्लाह रसूल को नहीं माने तो फिर तुम कौन है? इसलिए आइए सुनिए, आपके मालूमात में इजाफा होता है, आपके अकीदे मजबूत होते। भाई हमारे को और कुछ फिक्र नहीं है, हमारे को ये फिक्र है कि हम खबर तक ये अकीदा लेके जाएं हमारे लिए, इसलिए हम भी जाएं, आपको भी लेके जाएं। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है मालूम है आपको? सरकार ने जिनको फरमाया, पूरे तवील हदीस है, मैं उसका टुकड़ा सुना रहा हूं। सरकार ने बोला अबू बकर तुम्हारी और तुम्हारे चाहने वालों की मग़फ़िरत कर दी है अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत तवील हदीस है, अब मैं सुनाने बैठा तो 1 घंटा लगता, उसका एक टुकड़ा सुना रहा हूं मैं आपको। सरकार ने फरमाया अबू बकर तुम्हारी और तुम्हारे चाहने वालों की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। जिसके लिए एक मर्तबा सरकार के पास जिब्रील हाजिर थे, हजरत अबू बकर आए तो हजरत जिब्रील खड़े हो गए ताज़ीम में। वो शान वही सुनते थे,
अभी सरकार बहनों ने माना ना, वो शान अबू बकर सिद्दीक की है, इसलिए हम तमाम खल्क में अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। यही अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। जो ये बोला वो हमारा भाई है, नहीं बोला तो उन्हें कुछ भी होगा, किताब भी पढ़ा, जी हम उसको नहीं मानते। बेशक मैं तो नहीं मानता, ना मैं उसके पास बैठता हूँ, ना मैं उससे बात करता हूँ, ना मैं उससे मुनाजरा करता हूँ, ना मैं उससे बहस करता हूँ। मानता ना मान नहीं मानता, जा तू अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहे, समझे। तू तेरे को तेरी जो मिलना है वो मिलेगा, हमको जो उनके सदक़े में जन्नत मिल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। बस हम तो ये अकीदा रखते हैं यार, बहस करने का उसका दौर नहीं है ये पे। अब ये बोले तो एक बात, एक बोले तो एक बात, एक बोले तो एक बात, तो कितना को समझाएंगे हम। हाँ, इसलिए आप तमाम को समझाते हैं जितने हैं, आप लोग भी सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह तशरीफ लाइए। थोड़ा एक दिन उठिए, सर्दी का मौसम है, मैं जानता हूँ, 10 बजे रहिए। इंशाअल्लाह मजमा जमा होते हम जो है शुरू कर देंगे जलसा, और तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा, तमाम लोग करेंगे और जो है बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश यही है कि आप जो है सुबह 10 बजे तशरीफ ला लें जामे मस्जिद अफजलगंज में। इंशाअल्लाह आप और हम वहाँ अबू बकर सिद्दीक की गुलामी का और क़िराज अखीर पेश करने का काम करेंगे। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीबी या मुहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरे मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अलगयास है जान जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बड़े नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीग दे लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। आप सिद्दीक है, अफजलुल खल्क है, आपकी हर फजीलत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। सानिए गार है, सानिए खब्र है, ऐसी शाने रिफाकत पे लाखों सलाम। जानशीने रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदारे सदाकत पे लाखों सलाम। आपके कांधे है मुस्त
مصطفیٰ ہے سوار ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام دین کے دشمنوں کا صفایا کیا آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام سو خواجہ ادب کرتے ہیں آپ کا آپ کی شان و رفعت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ہم پہ بھی کیجیے ایک نگاہ کرم آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام ربنا تقبل منا الفاتحہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقے میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام صدقے سید کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستی کے صدقے میں حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کے صدقے میں حضرت بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو فرما اللہ ہمیں عزت و عروج عطا فرما یا اللہ ہم کو رزق میں کشادگی عطا فرما عمر دراز عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں مضر امراض سے دور فرما دے یا اللہ ہماری ہر پریشانی دفع فرما دے یا اللہ ہم کو ہر جگہ کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو قرضوں میں ان کے قرضے عطا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے فرما یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جس چیز جو مشکل میں ان کی مشکلوں کو دور فرما دے ہماری آخرت بہتر فرما دے ہم جب مرے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ ہو یا اللہ ہماری خبر حشر میں تیرے رسول کی شفاعت عطا فرما تیری رحمت عطا فرما یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشانی دور فرما دے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما شام کے مسلمانوں کی مدد فرما لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما اس جو مسلمان اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے پنجوں کو مروڑ دے مسجدوں کی حفاظت فرما ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس گھر میں رحمتیں نازل فرما گھر کے رہنے والوں کو خوشیاں عطا فرما اس گھر میں جو ہے برکتیں رحمتیں رونقیں عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے صلی اللہ ہاں جناب باقر علی صاحب کی والد محترم کی بخشش عطا فرما ان کی قبر میں نور و سکینہ عطا فرما ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ باقر صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرما ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما یا اللہ ان کے دادا کی قبر میں نور فرما اور ان کی اعلیٰ درجہ عطا فرما یا اللہ ہم سب جو بھی مرحومین ہیں ہمارے ان سب کی قبروں میں نور و سکینہ فرما ان کو بھی جنت عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کا حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.